में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 19वें, 20वें, 21वें, 22वें और 23वें प्रतिवेदन की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूँ। Reports of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी। आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति 2025-26 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। नंबर 1, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियर महाविद्यालय, IIM, IIT, चिकित्सा संस्थानों सहित स्वतः निकायों शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका के संबंध में समिति का 7वां प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा। नंबर 2, महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम NSTFDC के कार्यकरण की समीक्षा के संबंध में समिति का 8वां प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा सदन के पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। Honorable members, as the question hour has been dispensed with today, the answers to starred and unstart questions listed in today's list of questions would be treated as laid on the table. Statement regarding government business. Respected Chairman Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 23rd of March 2026, will consist of number 1, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for grants for the year 2026-27 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and return of the Finance Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 after it is considered and passed by Lok Sabha. Thank you. Honorable members, today we bid farewell to some of our esteemed colleagues who would be retiring in the months of April to July this year on completion of their term of office. A total of 59 members from 20 states will be retiring during this period, including 9 women members. Honorable members, our constitutional scheme provides for the retirement of 1/3 of the members of this House every 2 years, thereby bringing about a periodic change in the composition of this august House. This arrangement ensures continuity in the functioning of the Council of States, while also creating space for new members to join the House and enrich its deliberations with their experience and insights. The process truly reflects the character of this House as a microcosm of our diverse nation. Honorable members, retirement should not be viewed as an end, but as the beginning of new roles and responsibilities. It signifies the passing on of the baton of new members who will carry forward the legacy of this institution with fresh ideas, renewed energy, and commitment. At the same time, the experience and wisdom gained by the retiring members during their tenure will continue to guide and inspire the next generation of parliamentarians. Among the members retiring are several distinguished public figures and veteran parliamentarians who have served as the nation with dedication for many years in public life. Shriman H.D. Devegowda ji, former Prime Minister of India, is a distinguished leader whose presence has added great stature to the House. With his long experience in parliamentary and public life and his deep commitment to the interests of the farmers and rural communities, he has brought valuable perspectives to the debate of this House.
The House has also benefited greatly from the leadership and experience of Sriman Mallikarjun Kharge, the Honorable Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, with his long and distinguished parliamentary career in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Sriman Kharge has been an important voice in the democratic functioning of this House. I would also like to make a particular mention of Sriman Harivansh, the Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha, whose term is also coming to an end on 9th April 2026. Sri Harivansh has presided over this House with dignity, impartiality, and a deep sense of responsibility. Before entering parliamentary life, he had a distinguished career in journalism and public discourse, and he brought to this House his vast experience, calm demeanor, and commitment to parliamentary traditions. As Deputy Chairman, he has guided the proceedings of the House with patience, fairness, and wisdom, earning the respect and appreciation of members across the political spectrum. Furthermore, he has made meaningful and valuable contributions in several national and international parliamentary forums, including the Inter-Parliamentary Union, IPU, the Commonwealth Parliamentary Association, CPA, and BRICS Parliamentary Forum, the CSPOC, and the P20 Parliamentary Speakers Summit. His contribution towards maintaining the decorum and orderly functioning of this House will always be remembered with great regard. I also regard my appreciation to the retiring members of the panel of vice chairpersons whose contributions as the presiding officer have enabled the smooth conduct of business of the House. Among the retiring members are also several distinguished personalities who have made notable contributions in governance and public life. The House has also benefited from the experience of those members who have served the country in executive and administrative capacities. All the retiring members have been articulate voices representing diverse regions and communities of our country. Most of them have long experience in legislative affairs and have contributed significantly to the debates of the House. They have represented the aspirations of their respective states and communities and the nation as a whole, and have raised important issues related thereto in this House. Honorable members, a beautiful sentiment expressed in Tamil reminds us, "Seyin nanmai kalam kadandum valum," which conveys that though one retires, the good done by one's deeds continues to live on through time. The retiring members of this House have, through their public service and dedication, created such enduring contributions that will remain part of the legacy of this institution. Their insights and interventions have enriched the debates and discussions of this House and strengthened the democratic process. The contributions made by the own members who are retiring are particularly noteworthy and reflect their steadfast commitment to public service. I would like to place on record my sincere appreciation for the valuable contributions made by the retiring members and for the cooperation and the support they have extended to the chair in the conduct of proceedings of this House. Some among the retiring members have already been re-elected to this House, and I am sure a few more will be re-elected, and their experience will once again enrich the deliberations of this august institution. Farewell is always a painful moment, marked by a sense of parting, yet made meaningful by the lasting memories and contributions that endure. As they conclude their term in this august House, I wish all the retiring members good health, happiness, and success in their future endeavors. I am confident that they will continue to serve the nation and the people with the same dedication and commitment that they have demonstrated during their tenure in this House.
Now, Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, एक ऐसा अवसर है जो हमें इस सदन में हर 2 वर्ष के बाद कुछ भावुक पलों में डुबो देता है। इस विशेष अवसर पर आपने मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा, आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का
निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज़्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान। और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी, वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं कहेंगे, मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो पर उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूं हमारे संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है जो चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना, हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं
उनका तो योगदान रहा ही है और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है, लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन की निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, Honorable Leader of the Opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे सामने प्रधानमंत्री जी भी अपने विचार रखे। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूँ। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुनकर आते हैं,
और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते, रिटायर भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद साथियों के साथ मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ जो बातें बोली जाती है ये हमको सीखने लायक है, क्योंकि मैं कम से कम 39 साल असेंबली में था और उसके बाद में यहाँ भी अब 20 साल होने आया। मोर और लेस मेरा 54-55 साल चल रहा है और इसमें कोई घटोती नहीं हुई। तो हम कोशिश करें कि यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं और मैंने ये अनुभव हासिल किया। सभापति जी अपने पूरे संसदीय जीवन में मैंने सदन में नियमित रूप से उसे उपस्थित रहने और चर्चाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ अटेंड करने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए कि हमको कुछ अनुभव मिलता है अलग अलग राज्यों से आए हुए नेताओं से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से, अलग अलग अपने जो कुछ भी अनुभव है वो अनुभव भी यहाँ पर वो बताते हैं, तो वो सीखने लायक रहता है। और मैं हालांकि 54 साल मुझे कंप्लीट हो गए तो भी मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि हर आदमी संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, उसका ज्ञान उसी वक्त बढ़ता है जैसा वो पढ़ते जाता है, जैसा वो सुने जाता है, सीखे जाता है, तभी उसका और भी ज्ञान बढ़ते रहता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीखकर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूँ। उच्च सदन में मेरा बहुत सा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। मैं इस मत का हूँ कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है, ताकि उच्च सदन समाज को और देश को बेहतर संदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो एच.डी. देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे डीएमके के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथौले साहब जिनका जिक्र
हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। 1 दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर, केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूँ, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतम कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को ये सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने, सदन के सामने रखते थे। उसी ढंग से साकेत गोखले, वो भी एक विद्वान है, युवा है, उसने भी बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड खत्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। सर, अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों का भी बराबर की भूमिका होती है। संसदीय समितियों में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इस पर सभी लोग गंभीरता से सोचकर एक होकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा
सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते हैं। कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज़्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमज़ोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूँ। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं काम कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ, विदाई तो है
दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी एक होकर, भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे, ऐसा मेरे विचार आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Now, Honorable Deputy Chairman ji. आदरणीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय सभापति जी, आपने मेरे प्रति जो सकारात्मक प्रेरक शब्द कहे वो मेरी स्मृति के स्थायी अंग होंगे। आदरणीय खड़गे जी ने जो उद्गार प्रोत्साहन मेरे लिए कहा वो अभी मेरे जीवन का अंग होगा। मैं सबसे पहले जो आज माननीय सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं, जो आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भावनाएं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की, उनसे खुद को जोड़ता हूं। ये सभी माननीय सदस्य स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, इनका उज्जवल भविष्य हो और देश को इसी तरह राह दिखाते रहें, ये कामना करता हूं। राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद अमूमन बसंत में 1/3 सदस्य विदा लेते हैं। व्यापक अनुभव ज्ञान से समृद्ध होकर देश के नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाकर उतने ही सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और सपनों के साथ मुल्क की नई इबारत लिखने आते हैं। जैसे वसंत में पुरानी पत्तियों की जगह नई पत्तियां और कोपलें आती हैं, इसी तरह आने वाले सभी नए सदस्यों को भी हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे सार्वजनिक जीवन के जो भी मार्गदर्शक रहे उन सबके प्रति आभार। आदरणीय नीतीश जी हमें राज्यसभा में लाए, उनके प्रति आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले टर्म में मैं इस महान सदन का उपसभापति बना। आपको जितना मेरे प्रति, आपके प्रति जो उद्गार है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार और कृतज्ञता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरे मिलने के मौके बहुत कम होते हैं क्योंकि फंक्शनल रिश्ता सीधा नहीं है, पर जब भी मिला बहुत कुछ सीखा। उनकी चर्चा के केंद्र में हमेशा रहा सदन कैसे श्रेष्ठ ढंग से चले, दुनिया की आदर्श संसद कैसे बने, अन्य लोकतांत्रिक देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या हैं, क्या तकनीक के साथ वहां बदलाव हो रहे हैं, संसद को और जीवंत बनाए रखने और सिर्फ ये दिल्ली में स्थित केंद्र न रहे, संस्था न रहे, गांव-गांव तक युवाओं को, महिलाओं को कैसे आप लोग जोड़ सकते हैं, इस देशज सोच के अनुसार आप सोचें, आप लोग काम करें। इसलिए हमेशा उन्होंने पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रेरणा दी, इसके लिए भी आभार और कृतज्ञता। हमें उपसभापति बनाने में एनडीए घटक के सभी दलों ने पहल की। आदरणीय नीतीश जी की सक्रियता, आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन समेत एनडीए के सभी दलों को बहुत धन्यवाद। पर उपसभापति बनने के बाद सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिला। एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा आभार। उपसभापति बना तब के चेयरमैन आदरणीय वेंकैया नायडू जी का मार्गदर्शन उनसे सीखा, उनके प्रति भी कृतज्ञता। और इस पद पर रहे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता। और सर, आपके आने के बाद लगातार यह प्रयास रहा कि कैसे और बेहतर हम तरीके से संसद चलाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भूला नहीं जयराम जी, आदरणीय, यस, मैं उनका भी स्मरण किया। सभी इस सदन के माननीय सदस्य जेपी नड्डा जी का मर्यादित आचरण, शालीनता के साथ अपनी बातें रखना, सदन के एटिकेट्स और नियमों का पालन करना याद रहेगा। हमें सहयोग और हमारे लिए जीवन का अवसर है माननीय एलओपी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठने का सुअवसर, उनके प्रति आभार। सदन में हमेशा उनकी मौजूदगी, राजनीति का लंबा अनुभव और हर पल सजग रहना, यहां तक कि कोई सदस्य बोल रहा है, कोई शब्द छूट गए तो मुझसे पूछते।
इसलिए आपसे बहुत सीखने का मौका मिला सर, और आपका जो व्यापक अनुभव है उससे हमें जानने का भी अवसर मिला देश की राजनीति। संसदीय मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में तर्कपूर्ण और प्रेम से बातें रखना वो हमेशा सर मुझे याद रहेगा। संसदीय मामलों के ही राज्य मंत्री एल मुरुगन जी, उनकी भी भूमिका हमेशा हमें स्मरणीय रहेगी। सांसद बनकर आया तो उपसभापति थे पीजे कुरियन जी, उनसे भी सीखा सर। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जी, आदरणीय शरद पवार जी, माननीय दिग्विजय जी और बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ रहे। ये सभी इनका योगदान और इनकी बातें हमेशा स्मृति में रहेंगी। लेकिन इसके साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर्स, सभी चीफ व्हिप्स, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, इनमें से एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा सम्मान। मैं नाम लेता सबका एक एक का, पर समय को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ सदन में बेहतर कामकाज संभव बनाने वाले सेक्रेटरिएट के सभी लोगों, मार्शल्स, अटेंडेंट्स को मेरा धन्यवाद। सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जी की मदद, हर पल कठिन कामों को भी हंसते हंसते पूरा कराने की शैली याद रहेगी। साथ ही पोर्ट टर्मिनस के रूप में थोड़े बहुत जो स्टाफ मेरे साथ रहे, उनकी पल पल की तत्परता, उसने मेरे काम को संभव बनाया, उनको भी मैं याद करता हूं। सदन के हर सदस्य की खूबियां और विशिष्टताएं हैं जिनसे हमारा अनुभव संसार बहुत समृद्ध और आलोकित हुआ। शायद हम सदन के पहले उपसभापति हैं जो लगातार सदन में आपके साथ बैठकर आपकी बातों को बहुत धैर्य से सुनते रहे, सदन में भी और चेयर पर भी। इसलिए आपने अच्छे श्रोता होने का संयम और धैर्य सिखाया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मृदुता, सौम्यता से कठोर बात कह लेने की कला माननीय प्रमोद तिवारी जी में है, वह अविस्मरणीय है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, माननीय श्री त्रिचू शिवाजी, श्री घनश्याम तिवारी जी, डॉक्टर सस्मित पात्रा, अनेक मैं नाम लूं। भाई जॉन ब्रिटास जी जिससे नहीं होते तो संसद में उनकी अनुपस्थिति खलती है, उनकी मौजूदगी जीवंतता का एहसास कराती है। माननीय जयराम रमेश जी, हम यहां हो वहां हो पर उनका स्वर हमेशा सुनने को मिलता रहता, अविरत निरंतर। अनेक सदस्य जिन्हें मैं आज कहूं जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनमें फौजिया खान जी, प्रियंका जी समेत सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधा मूर्ति जी जब बोलती हैं, पीछे हमारे बैठे होंगे भाई राम जी, हरीश वीरान जी, दादा सुखेंदु शेखर राय जी, रीता व्रत बनर्जी जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, मयंक जी, गोविंद भाई समेत अनेक लोगों की खूबियों को मैं गिना सकता हूं, पर समय की मर्यादा है, इसलिए उनसे क्षमा के साथ आप में से एक एक व्यक्ति जिनकी खूबियों को जिनसे सुनकर सीखा, उनके प्रति कृतज्ञता के साथ, पर उन्हें भी याद करूं। जब सर संसद में आया, जिनके प्रेरणा और प्रोत्साहन का, जिनको देख करके प्रेरणा मिली, माननीय अरुण जेटली जी, जिन्हें अपनी बात सुनाने के लिए आवाज ऊंचा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, माननीय गुलाम नबी आजाद जी व आनंद शर्मा जी, ऐसे अनेक सहृदय वरिष्ठ जन, उन सबको मैं सम्मान के साथ याद करता हूं। सर, जिस गांव में पैदा हुआ, 6 महीने हम बाढ़ में पानी में रहा करते थे, वहीं जन्मना, गुजर जाना हमारी नियति थी। हमारी दुनिया बहुत सीमित थी। वहां के अति सामान्य परिवार से यहां तक की हुई यात्रा में हमारे ही गांव के जयप्रकाश जी और उस क्षेत्र की रहनुमाई करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी प्रेरक रहे। इस सदन के कुछ अनुभव मैं आपको आज जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2014 में इस सदन में आया, विपक्ष में था, तब नए सुधारों, प्रयोगों, डिजिटाइजेशन के आरंभ काल में हमारा मानस कैसा था। उस दौर में एक अति वरिष्ठ सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना मेरा मकसद है सर, पर मानस हम सबका कैसा था वो बताना चाहता हूं। वह डिजिटाइजेशन के प्रति संशय के सवाल उठा रहे थे। क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है और बहुत कठोर सब सर। यानी तब देश की फिजा में सार्वजनिक जीवन में उदासी नैराश्य था, यह कथन उसी का प्रतिबिंब था सर। पर सिर्फ 10 सालों में 1-2 गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल है। सिर्फ एक महीने जनवरी में 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन द्वारा 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है सर। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है सर। ये आज 12 वर्षों बाद देश की फिजा में आस्था है और भारत के विकसित भविष्य के प्रति देश दुनिया के लोग गौर कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य सर बता सकता हूं जो
हमें बताते हैं कि हमारा सामर्थ्य आज कितना, हम क्या कर सकते हैं और कहां से कहां पहुंचे। सर मुझे याद है पहली बार विदेश गया था 1994 में पत्रकार के रूप में, तब भारत की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन कहा जाता था कि साधु सपेरों जादूगरों और गरीबों का मुल्क है। एक नारायण मूर्ति जी ने किस तरह चीजों को बदला कि दुनिया में हमारी प्रतिभा की पहचान होने लगी और थॉमस फ्रीडमैन जैसे व्यक्ति को किताब लिखने पड़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज मैं सर सोचता हूं कि जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ रहा है उसमें 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 125 यूनिकार हैं। कल्पना करें कि जब नारायण मूर्ति जी के रास्ते पर उस रोल मॉडल के हजारों लाखों लोग आने वाले भारत में निकलेंगे, तब हम कहां खड़े होंगे। सर यहां रहते साक्षी बना कि 12 वर्षों में अनेक रिमार्केबल युगांतकारी विधेयक सदन ने पारित किया, मसलन दिवालिया कानून, बेनामी संपत्ति कानून, 3 तलाक कानून, जीएसटी कानून, धारा 370 का निरस्तीकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 1,500 से अधिक पुराने कानूनों का निरस्त होना। जो करना चाहता था सदस्य के रूप में और कभी कभी कोशिश की, वो मेरी कामना है सर। जैसे हम सब सदन में और समितियों में प्रायः सुनते हैं कि इस क्षेत्र में बजट में एलोकेशन बहुत कम है, बड़े बड़े विकसित देशों में इतना एलोकेशन हो गया, पर शायद सर ये संसाधन कहां से आएंगे, इस पर भी गौर करना हमारा फर्ज है। देश का बजट हमारी दृष्टि में एक परिवार के बजट जैसा ही है। आमद कैसे बढ़े यह सोचना परिवार के मुखिया की तरह देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हमारा धर्म है कि समस्या के साथ हम समाधान बताएं। और ये सर मैं नहीं कह रहा, देश के पहले स्पीकर श्री जीवी मावलंकर जी ने 18 अप्रैल 50 को एस्टीमेट कमेटी में कहा, उसका मैं सार बता रहा हूं सर, वो कोट पढ़ने लायक है। हमारे संसदीय जीवन में रचनात्मकता के बजाय अक्सर विरोध की प्रवृत्ति हावी रही है। बिना गहराई के सोचे समझे हम सरकार के हर प्रस्ताव पर संदेह करते हैं, जबकि जरूरत है कि हम जिम्मेदारी साझा करते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी सदन में सर मैंने सदन के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को 28 मार्च 2018 को एक मेंबर के रूप में फेयरवेल भाषण उनका सुना, वो मेरे मस्तिष्क में आज भी यादगार के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा, आई कोट, राष्ट्रीय हित के मुद्दों और राष्ट्रीय संकट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 30 मार्च 72 को ऐसे ही फेयरवेल स्पीच में कहा था, वो मैं कोट करता हूं सर। सो आई होप that even though many of the members belong to opposition parties, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society, work together in spite of our differences, and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. सर जब मैं यहाँ आया, दीवारों पर हमारे बहुत अच्छी सूक्तियाँ लिखी हैं, रामायण महाभारत से लेकर अन्य ग्रंथों के सारा, उस पर एक तुलसीदास की चौपाई है सर। हम गांव में जब अपढ़ लोगों की संख्या ही ज्यादा थी, पर ये श्लोक मैंने वहां सुना था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति दाना। ये यहां भी लिखा हुआ है सर। राष्ट्रीय सवालों पर हम आम सहमति बना सकें, क्योंकि देश है तब दल हैं तब हम हैं सर। ये मेरी कामना होगी। हमने संसद में जो बदलाव देखा सर, हमने अपने दौर में जब सांसद के रूप में काम शुरू किया सर, तो पेपर्स के पुलिंदा आते थे सर। आज डिजिटाइजेशन के कारण संसद की कार्यवाही लगभग पेपरलेस है। ये बड़ी उपलब्धि है सर। हमारा मानना है कि संसद के रूल्स को डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अनुरूप बनाने के साथ साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में पैदा हो रही नई समस्याओं से भी हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। एक निजी अनुभव और सर, जब मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया सर, तो लगा कि पहले चेयर पे जो लोग होते थे वो हाउस को कंडक्ट करते थे, यानी किसी दल में होता था, कुछ लोग होते थे, उनको दल भी समर्थन नहीं करते थे, जो एटिकेट्स को और नियमों को तोड़ते थे, उनके दल उनको समर्थन नहीं करते थे। आज स्थिति बदली है। पहले चेयर पर आने के बाद सदन को नियंत्रित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है, पहले कंडक्ट कराना पड़ता था, क्योंकि लोग स्वतः रूल्स को फॉलो करते थे। आज पहले कंट्रोल करने की अपील करके कोशिश होती है, तब हम कंडक्ट करा पाते हैं। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, हमारी संसद के इन हाउस प्रयासों के अलावा बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में जैसी संस्थाओं ने संसद के कामकाज को आज के समय के अनुरूप प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में 2000 में
ओवरलैप ऑफ मैंडेट्स बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि यह सदन इन चीजों पर गौर करेगा। सर, यादगार पल रहा हमारे लिए पुराने संसद भवन में, जहां आजादी के इतिहास के बदलाव का वो साक्षी था। कोविड के दौरान कम समय में बने इस भव्य नए संसद इमारत में 47 तक विकसित भारत बनाने के नए सपनों, नए संकल्पों के साथ हम आए, यही यादगार रहेगा। सर, अंत में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर शब्द है और बौद्ध धर्म के उद्गम से इसे हमने जाना, पर मैं जब इसको तहकीकात कर रहा था तो पाया चरैवती चरैवती, ये वैदिक परंपरा ऐत्रेय ब्राह्मण से निकला शब्द है। सर, कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, मार्च ऑन, यानी जीवन में कभी न रुकने, थकने या विषम परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने, कर्मशीलता की प्रेरणा इसी सदन से मिलती है। सदन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। सर, और भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहाँ रहें और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चरैवती चरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। Honorable members, as many party leaders and retiring members are willing to participate in the farewell speeches, if the House agrees, we may skip lunch hour today. I also request that all the speeches be kept brief and completed within 3 minutes each. Now, Sriman H.D. Devegowda ji, Sriman Derek O'Brien ji. Sir, to all the members on the treasury benches and in the opposition benches who are moving on in the next few days and weeks to new jobs and new roles and new ways to make their political lives meaningful, on behalf of the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party and the chairperson of the All India Trinamool Congress, Ms. Mamta Banerjee, I wish them the very best and greetings to each one of you. Sir, we will keep these speeches short, because today is the day not for the floor leaders, it's for the day for those who are leaving. Give them all the time you want. One, many of the MPs retiring today have set a record. I want to congratulate them for that. What is the record? They have been here for 6 years, but I think they are the only MPs who've been here for 6 years since 1950 and have worked under 3 chairmen. Mr. Venkaiah Naidu, Mr. Dhankar, and now Sir you. So in 6 years they've had this triple opportunity. Sir, there are many seniors today who were mentioned, and I wish them very, very well. If I leave somebody's name out, it's not deliberate, like my colleague, senior, Mr. Subrata Bakshi, who's been with our party right from day one. He wouldn't come to Parliament. We wish him a speedy and healthy recovery. Mr. Subrata Bakshi from the Trinamool Congress. There are so many else I want to mention. Many are coming back, but some people, seniors, have even opted out, like the Venerable Mr. Digvijay Singh, who is always full of enthu. Sir, but today,
as we celebrate the experience of the septuagenarians and the octogenarians, I want